नमस्कार, नेशनल स्पेशल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बांग्लादेश की स्थिति पर। भारत जो है वो पैनी नजर बनाए हुए है। इसको लेकर के सर्वदलीय बैठक जो है वो की गई। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश की स्थिति पर भारत सरकार कड़ी नजर रख रही है। जो भी स्थिति होगी उसके बारे में सूचित किया जाएगा। विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश में करीब 12 से 13 हजार भारतीय हैं। स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है कि उनको एयरलिफ्ट करने की नौबत आए। सीमा पर भी गश्त बढ़ा दिया गया है बीएसएफ के जवान। मतलब बढ़ाना ही चाहिए। देश की जहाँ भी सीमाएं हैं वहाँ पे सुरक्षा तो बढ़ानी चाहिए। बाकी स्थिति की चर्चा अंदर देखते हैं कि सरकार ने बुलाई है ऑल पार्टी मीटिंग, तो उसमें देखते हैं क्या क्या चर्चाएं होती है। बाहर आके आप सबको बताएंगे। फिर आप लोगों को क्या चिंता लग रही है, मतलब क्या होगा इस स्थिति में, मतलब आप लोगों को चिंता लग रही है या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पड़ोसी देश है हमारा और चिंता स्वाभाविक है। भारत के लोगों को और सरकार को चिंता करनी चाहिए। मैं वही कह रही हूँ ना कि अभी बैठक में जाते हैं, फिर देखते हैं सरकार। Well, look, as far as India is concerned, I think the first and most important signal we need to send to the people of Bangladesh is that we stand with them. That there is no other vested interests that India has. We have interests, obviously, in a peaceful, prosperous Bangladesh, but we are with the people. We stand for their right to determine their own political destiny and their own representatives. Having said that, we obviously have to be very much on alert. There are some disturbing reports coming, as you know, of attacks on Hindu homes, temples, and individuals. One might hope this will calm down, especially because every sort of popular uprising is followed by some degree of anarchy. We all saw the pictures of looting, etc. yesterday. It may calm down and stabilize in a couple of days, in which case we don't have to worry. If it doesn't, then of course there is a risk even of refugees fleeing to our country, and that would be a matter of grave concern. Third, obviously, I'm sure that our High Commissioner and our staff there are safe and they're monitoring the situation closely, and I hope they're in touch with the new authorities as they emerge. We still don't know who is going to be in the interim government. Various names are being floated, but I think that's going to be an important contact. There are some understandable concerns in India about the increasing influence of the Jamaat-e-Islami, which has taken a very hostile attitude to India in the past, and possible meddling by China and Pakistan, which have always seen Bangladesh as a potential soft underbelly of India that they could fish in troubled waters in. And so therefore, again, we have to be alert. We have to do our own thing. But I believe it would be a mistake to take a hostile attitude to this change, even though we were strong supporters of the previous government, because it is not our business. And I don't think the Indian government will do that. And the Indian government will accept whatever new reality emerges, that's my impression, and that they would actually work seriously with the new authorities, because peace and progress in Bangladesh is not only in the interests of the Bangladeshi people, it's also in our interests. We don't want an unstable or an unfriendly. और ओवरऑल परिस्थिति बड़ा अलार्मिंग है। मुझे पक्का लगता है भारत सरकार की नज़र होगी, लेकिन बहुत चिंता की विषय है। बांग्लादेश की स्थिति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी कि भारत के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में एकजुटता नजर आ रही है। वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ऐसे में बांग्लादेश की स्थिति पर कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने कहा कि हम पूरी तरह से भारत सरकार के साथ हैं। I think it's a good step that the External Affairs Ministers who are briefing all party leaders. We welcome that move on part of the External Affairs Minister. We are completely with the government as far as national security and the safety of our citizens are concerned. What's happening in Bangladesh is very worrying. It's not just, we can't just say that it's merely a toppling of an unpopular government. It seems to be something more deeper than that. The safety of our citizens, the safety of our borders is very, very important. And eventually, whatever government forms there, we have to make sure that that government is in line with us in terms of our national interest and is not against us, and it's not some radical government which is against the Indian interests. दिल्ली में आज शिवसेना यूबीटी की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक को लेकर के उद्धव ठाकरे जो हैं वो भी दिल्ली जाने वाले हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक और साथ ही वहां के नेताओं से भी जो है वो उद्धव ठाकरे मुलाकात करेंगे, जिसकी जानकारी शिवसेना सांसद संजय राउत ने दी। उद्धव ठाकरे जी आज आ जाएंगे, पार्टी चीफ हमारे 3 दिन रहेंगे, नेताओं से मिलेंगे इंडिया ब्लॉक के। स्पेशल क्या टारगेट है असेंबली इलेक्शन? विधानसभा।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में वो शामिल हुए। दरअसल विपक्ष केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर बढ़ाई गई जीएसटी को वापस लेने की मांग को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर के संसद में इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन पर जेएमएम नेता महुआ माझी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जीएसटी जो कि हेल्थ सेक्टर में जो जी जी इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया है, क्या कहना है आपका? देखिए, मोदी सरकार बिना सोच समझ के कुछ भी एक तानाशाही ये के तहत कुछ भी लागू कर देती है। नोटबंदी कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया। अब हेल्थ सेक्टर में अगर इस तरह से 18% जीएसटी होगा तो लोग जो मिडिल क्लास खास तौर पर बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस करने से भी अब डर रही है। लेकिन वो लोग सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ही करते थे पहले, लेकिन 80% देख के उनको लग रहा है कि किसी और तरफ हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसे अविलंब खत्म करना चाहिए। इसीलिए आज संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाया और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हेल्थ सेक्टर में जीएसटी 18% से कम ना किया जाए। अब लोग लेना ही बंद कर देंगे। जब इतना जीएसटी देना होगा तो लोग देंगे क्यों? जैसे लोग गोल्ड खरीद के छुपा के रख देते हैं कि चलो कभी इमरजेंसी में काम आएगा, अब इस तरह की चीजों में लोग इन्वेस्ट करेंगे, जमीन खरीद के रख देंगे, लेकिन वो तत्काल नहीं ना मिलता है। ये है कि आप कभी भी बीमार पड़े तो तुरंत आपको ये गारंटी रहती थी कि मेडिक्लेम वगैरह से आपको तुरंत मिल जाएगा। अब तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएगी देश की जनता। आप सिर्फ अपर क्लास को देख रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को देख के सारे पॉलिसीज बना रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो जनता के टैक्स के पैसे और ये सब है, इसको लेके आप चंद पूंजीपतियों को और अमीर बना रहे हैं। ये टैक्स के पैसे उनके खाते में जा रहे हैं, वो पैसे लेकर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। उनसे आप वसूली नहीं करते और छोटे छोटे लोगों को जो पेट काट काट के अपने भविष्य के लिए प्लान करते हैं। आप देखिए ना, जो पैसे बैंकों में जमा थे उसके कितने % चले गए बाहर विदेशों में, बड़े पूंजीपति लोन लेके चले गए। अब उसका असर तो उन पर पड़ रहा है ना, जो लोग अपना भविष्य देखकर पैसे उन्होंने बैंक में रखा था, अब उसका इंटरेस्ट इतना कम हो गया है कि वो अपना दवा तक नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए, ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि जनता त्रस्त आ चुकी। वहीं सरकार ने स्वास्थ्य बीमा और दवाइयों पर जो जीएसटी लगा रखा है उसको लेकर के विपक्ष के सांसदों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा है कि इस जीएसटी और स्वास्थ्य बीमा पर दवाइयों पर जो जीएसटी लगाई गई है उससे आम जनमानस जो है वो काफी परेशान है। वित्त मंत्री महोदया ने, यानी कि सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस पे, दवाइयों पे जो जीएसटी लगा रखी है उससे आम जनमानस बहुत परेशान है और नितिन गडकरी जी भी इसके लिए पत्र लिख चुके हैं। तो सरकार के अंदर भी इस बात पे विरोध है। पूरा विपक्ष इंडिया ब्लॉक आज इस चीज के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को, आम आदमी को राहत देनी पड़ेगी। क्रीमी लेयर आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के देश में विपक्षी नेताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जब इसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। देखिए, आज जरूरत वास्तव में यह है कि जो समाज जिनको आरक्षण सुविधा दी जा रही है उस आरक्षण में वास्तव में पिछड़ गया है, इसका लाभ जो नहीं उठा पा रहे हैं जाकर के, हमारा भी मानना है कि निश्चित तौर पर जो फैसले जो आए जाकर के हैं उसका हम स्वागत करते जा करके हैं। और हमें भी ऐसा लगता है कि आरक्षण में जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें निश्चित तौर पर जिनको लाभ मिल चुका है, जिनको लाभ नहीं मिला है, इसको 2 श्रेणियों में बांटने की जरूरत जा करके। तो जो पिछड़ गए हैं, काफ़ी पीछे हैं, उनको उस दौड़ में ला करके आरक्षण सुविधा देने का काम करना जा करके है। तो हमारा मानना है जो फैसला जो आया है उसका स्वागत योग्य है जा करके, सबको समर्थन करना चाहिए जा करके। उससे किसी जाति को नुकसान होने वाला नहीं, उसी जाति में जो अंतिम पावदान पर जो होंगे उनको लाभ मिलेगा। जो आगे बढ़ गए, जो राजनीति में आ गए, सरकारी विभागों में नौकरी में आएगा, आत्मनिर्भर बन गए जा करके, तो ऐसे लोग को ज़रूरत नहीं है जो वास्तव में आज भी राजनीतिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से पीछे जो लोग हैं उनको आगे लाने की ज़रूरत है। मुस्लिम नेता बेवजह परेशान है, समय समय पर कानून बदले जाते, संशोधन किए जाते हैं। ये संशोधन जा करके है जो कमियां हैं और आज की आवश्यकता के हिसाब से सरकार संशोधन का दृष्टिकोण से ला रही जा करके, उससे किसी का हित होने वाला नहीं है। सबका हितों का ख्याल रखते हुए सरकार अमेंडमेंट करेगी। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और बाढ़ का कहर जारी है और ऐसे में अगर हम बात करें मंडी की सांसद कंगना रनौत की, तो वो बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने के लिए पहुंची और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए
कहा कि केंद्र की ओर से पैकेज जो है वो राज्य सरकार को दिए जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए, लेकिन बाढ़ पीड़ितों तक वो पैकेज नहीं पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला है। देखिए, जो राज्य सरकार की जो हालत है वो तो सबको पता ही है कि राज्य सरकार की क्या हालत है। पिछली बार के जो विस्थापित है उन सबको ये प्रॉमिस किया था कि 7-7 लाख रुपया जो कि केंद्र से फंड आया था, 7-7 लाख रुपया सबको देंगे। तो क्या मिला? वो 7 लाख रुपया नहीं मिला। तो देखिए, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जो राज्य सरकार की ये जो करतूत है और इनकी जो ये अमानवीय जो इनकी जो करतूतें हैं, इनके दिल में कोई दया नहीं है, इनके दिल में कोई भाव नहीं है। कि मैं देख रही हूं कि गांव के लोग खुद अपने हाथों से अपने पुल बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अवश्य ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पैकेज भेजेंगे। उन्होंने पिछली बार भी भेजा था 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था उन्होंने, अब भी भेजेंगे वो, और वो जाएगा सुक्खू जी को। लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे? वो जो है उसकी मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए, इन पे स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए, और जो भी इन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो यहाँ पे इन्होंने नाच शुरू किया है उस पे जो है लगाम लगाई जाए। क्योंकि एक हद तक जो है, लेकिन जब इंसानियत यहाँ पर जो है रोने लगी है तो अब हिमाचल के जो है वो नागरिक नहीं सहेंगे ये। बढ़ेंगे आगे और आज है 6 अगस्त, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की आज पुण्यतिथि है। बता दें कि स्वराज का 6 अगस्त 2019 को 67 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया था। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर पौधारोपण किया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अपनी मां के नाम एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। उन्होंने आगे लिखा कि माँ, आपको गए 5 साल हो गए, पर आपका आशीर्वाद और प्यार हर पल मेरे साथ है। आपकी यादें और सीख मेरे हर कदम को संवारती है, आपकी कमी हर क्षण महसूस होती है। कुछ गम ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई समय भी पूरी नहीं कर सकता। ये एक ऐसी क्षति है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारत में एक बहुत ही खूबसूरत मुहिम शुरू हुई है, एक पेड़ मां के नाम। आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, जो हमारे भाजपा परिवार के मुखिया भी हैं, इनके सानिध्य में यहाँ वीर सावरकर पार्क में आकर हम सबने मां की स्मृति को जीवंत करते हुए 21 पेड़ लगाए हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता की उपस्थिति में, उनके आंखों में, उनके आशीर्वाद में मुझे श्रीमती सुषमा स्वराज का वात्सल्य जीवंत मिलता है। इसलिए मैं उन सब के चरणों में कोटि-कोटि वंदन करती हूँ। पिछले 2 दिनों की भारी गिरावट के बाद शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है। मंगलवार को सेंसेक्स 944 चढ़कर 79,693.64 पर कारोबार कर रहा है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 278 अंक चढ़कर वो कारोबार कर रहा है। पिछले 2 दिनों की भारी गिरावट के बाद शेयर बाजार में शानदार तेजी जो है वो देखी जा रही है। मंगलवार को सेंसेक्स 944 चढ़कर 79,693.64 पर कारोबार कर रहा है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो 278 अंक चढ़कर वो कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी 600 अंक चढ़कर 50,660 लेवल पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार रातों रात 3% तक गिरकर बंद हुए। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स जो है वो 2222.55 अंक या 2.74% की गिरावट के साथ जो है वो बंद हुआ था। वहीं शेयर बाजार में आज जो है वो उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों के अंदर काफी खुशी भी है। बढ़ेंगे आगे। वहीं बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच एकजुटता जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में अगर हम आरजेडी के सांसद मनोज झा की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले कुछ हफ्तों से चल रही घटनाओं पर नजर रख रहे हैं और एक खाका भी होगा। यह एक बहुस्तरीय वास्तुकला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमईए जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नज़र बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा।
हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण। ऐसा नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।